Very good morning, children. In the last class, I have explained the formulas. I'll just quickly revise them. Limit x tends to 0, a raised to x minus 1 upon x is equal to log a. Limit x tends to 0, e raised to x minus 1 upon x is equal to log e, है ना? Then limit x tends to 0, log of 1 plus x upon x is equal to 1, and lastly limit x tends to 0, 1 plus x raised to 1 by x is equal to e. Now remember, for all these four formulas the conditions remains the same as we had for sine. Like sine का angle 0 होना चाहिए. Similarly here this all x, if I put directly the limit, they should be 0. Okay, understood? So let us start with 7.6 now. First one, limit x tends to 0, 9 raised to x minus 5 raised to x upon 4 raised to x minus 1. Now if you observe carefully, ये first formula में fit होता है. A मतलब any number, so I have 9 raised to x. What is missing over here? Minus 1. As per my formula, minus 1 is missing. तो मैं क्या करूँगा? 9 raised to x को minus 1 दे दूंगा. If I give minus 1 to 9 raised to x, I should do plus 1 also, ताकि मेरा क्वेश्चन चेंज ना हो. करेक्ट? नाउ से ऑटोमेटिकली 5 raised to x के लिए भी minus 1 आ गया है. करेक्ट? लेट अस सी हाउ. 9 raised to x minus 1, यहाँ से माइनस कॉमन निकलेगा, 5 raised to x minus 1. कॉमन निकालने के बाद I will give x to this also, I will give x to this also, and I will give x to denominator also, क्योंकि मेरे फॉर्मूला के हिसाब से it should be a raised to x minus 1 upon x. So what I did, I divided the numerator and denominator by x. Now every bracket is a formula over here. So 9 raised to x minus 1 upon x क्या आएगा? करेक्ट, log 9. 5 raised to x के लिए log 5 और डिनोमिनेटर में log 4. नाउ बाय log प्रॉपर्टी ये आएगा log 9 by 5 upon log 4. This is your answer. Understood everybody? Clear everyone? I hope there is no doubt. Okay. Now let us move to second sum. It is limit x tends to 0, 5 raised to x, 3 raised to x, minus 2 raised to x minus 1 upon x. Again देखो 5 raised to x है तो क्या मिसिंग है? minus 1. So 5 raised to x minus 1 किया, 3 raised to x को भी minus 1 किया, तो कितना एक्स्ट्रा ऐड किया है? minus 2. करेक्ट? सो minus 2 किया है तो plus 2 भी करना पड़ेगा. Am I right? So limit x tends to 0, यह हो जाएगा 5 raised to x minus 1 upon x plus 3 raised to x minus 1 upon x. Now see, what is minus 1 plus 2? Plus 1. 2 minus 1 plus 1 आएगा. Purposely मैं minus common निकालूंगा. So it will be 2 raised to x minus 1 upon x. Getting it? अब तीनों रेडीमेड फॉर्मूला बन गए हैं. तो log 5 plus log 3 minus log 2. अगेन log प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे. log a plus log b is log ab and log a minus log b is log a by b. ठीक है? Understood? Now third sum is exactly similar. I will not solve this, कि इसमें सिर्फ minus 1 plus 1 करना है, या you make effective use of this minus 3. minus 3 को minus 1 minus 1 minus 1 लिखो और तीनों a raised to x, b raised to x, c raised to x को दे दो.
Okay, is it clear? Yes. Next, number fifth one, limit x tends to 0, 8 raised to sin x minus 2 raised to tan x अपॉन e रेस टू 2x माइनस 1। अगेन ऊपर नंबर है तो a रेस टू x का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। व्हाट इज मिसिंग? 1 इज मिसिंग, सॉरी माइनस 1 इज मिसिंग। तो माइनस 1 किया तो एज यूजुअल माइनस 1 किया है तो प्लस 1 भी करना पड़ेगा। एम आई राइट? सो नाउ दिस कैन बी रिटन एज, सिंस एवरीथिंग इज बैलेंस्ड, हर एक चीज फॉर्मूला बन गई है, सो आई विल डिवाइड बाय x, यहां से माइनस कॉमन निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 रेज टू tan x माइनस 1 अपॉन x, e रेज टू 2x माइनस 1 अपॉन x बराबर ना। याद रखो sin x और x वही काम करता है। sin x कैन बी बैलेंस्ड बाय x, tan x कैन बी बैलेंस्ड बाय x, so no need to write sin x again in denominator over here, multiply and divide, because limits में sin x is almost equal to x provided angle is 0, so sin x can be balanced by x, तो ये हो जाएगा log 8। सेम ये tan x वाला पार्ट हो जाएगा log 2। नाउ डिनोमिनेटर में देखो e रेज टू 2x है तो आई नीड 2, सो आई मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय 2, ठीक है। सो अंदर का ब्रैकेट का वैल्यू हो गया 1, तो डिनोमिनेटर आएगा 2, सो इन शॉर्ट हाफ log 8 by 2, that is half log 4। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, log 4 मतलब क्या, 2 log 2, so 2 और हाफ कैंसिल हो जाएगा, my answer will be log 2। क्या आएगा मेरा आंसर? log 2। Understood? Now next, very very important sum, limit x tends to 0, 3 raised to x, 3 raised to x minus 2 अपॉन x tan x। अब देखो सबसे पहले डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे, tan x आया है तो डिवाइड बाय x मल्टीप्लाई बाय x बराबर। तो इन शॉर्ट मेरा क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा, 3 रेज टू x, 3 रेज टू माइनस x माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर। वाई? बिकॉज tan x अपॉन x बन जाता है 1। क्या बन जाता है tan x अपॉन x? 1। Understood? Now, since the denominator is x square, don't think of doing minus 1 plus 1 in numerator, क्योंकि अगर तुम minus 1 plus 1 in numerator में करोगे तुम्हारा सिर्फ x बैलेंस होगा, डिनोमिनेटर में एक x रह जाएगा, which will give answer as not defined। जब भी डिनोमिनेटर x square आता है अब न्यूमरेटर में एक्सपोनेंशियल है, try to bring two brackets, so let us see how we can bring। तो नेगेटिव चीजें नहीं पसंद तो आई राइट 1 अपॉन 3 रेज टू x, करेक्ट। ना क्रॉस मल्टीप्लाई तो जाएगा 3 रेज टू x द होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इंटू 3 रेज टू x, 3 रेज टू x इंटू एक्स स्क्वायर। अभी न्यूमरेटर को ध्यान से देखो, इट इज अ फॉर्मूला ऑफ a माइनस b द होल स्क्वायर। कैन यू सी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, सो हो जाएगा 3 रेज टू x माइनस 1 अपॉन x, पूरे को स्क्वायर कर दिया मैंने, सिंप्लीफाई कर दिया, और क्या बचा है अभी 1 अपॉन 3 रेज टू x बराबर। दिस स्क्वायर वाला ब्रैकेट का आंसर क्या आएगा, log 3 द होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 अपॉन 3 रेज टू 0, दैट इज 1, सो आंसर विल बी log 3 द होल स्क्वायर। ओके, इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अब हम सब पहले a रेज टू x वाले सम कर लेते हैं, सो आई टेक वन मोर सम, लिमिट x टेंड्स टू 0, 15 रेज टू x माइनस 5 रेज टू x माइनस 3 रेज टू x प्लस 1 अपॉन x साइन x। अगेन पहले न्यूमरेटर को सॉल्व, डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे, सो आई डिवाइड बाय x, आई विल मल्टीप्लाई बाय x बराबर।
अगेन डिनोमिनेटर क्या आ गया मेरा एक्स स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर है तो न्यूमरेटर में आई विल नॉट डू -1 + 1। तो देखो 15 रेज टू एक्स और 5 रेज टू एक्स क्या कॉमन निकलेगा? यस 5 रेज टू एक्स कॉमन निकलेगा। 3 रेज टू एक्स -1 विल बी लेफ्ट। अगेन आई टेक -1 कॉमन, 3 रेज टू एक्स -1 विल बी लेफ्ट। Again what is common? 3 raised to x minus 1 is common. 5 raised to x minus 1 upon x square. अब दोनों को x दे देंगे तो मैंने क्या किया देखो, डिनोमिनेटर का x बैलेंस कर दिया। एक x इसको जाएगा और एक x इसको जाएगा। अगर मैं -1 + 1 करता तो डिनोमिनेटर में एक x रह जाता। इट वुड हैव गिवन द आंसर एज इंफिनिटी। क्या आंसर मिलता? इंफिनिटी। आया समझ में? सो दिस इज योर आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन 3 का 4th and 5th यू कैन ट्राई ऑन योर ओन। क्वेश्चन 3 का 4th and 5th यू कैन ट्राई ऑन योर ओन। इट इज सेम एज व्हाट वी डिड इन 6th and 7th। ठीक है, क्लियर एवरीबॉडी? ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द फॉर्मूला ऑफ 1 + x। अभी we will do sums based on limit x tends to 0, 1 + x raised to 1 by x is equal to e. We will focus sums on this formula. Okay, so पहला है limit x tends to 0, 3 + x upon 3 minus x raised to 1 by x। जब भी 1 by x दिखाई दे पावर, थिंक ऑफ दिस फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पहला टर्म 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहला टर्म 1। सो नाउ टू मेक दिस 1, व्हाट विल आई डू? आई विल डिवाइड द एंटायर एक्सप्रेशन बाय 3। पूरे एक्सप्रेशन को 3 से डिवाइड किया तो आएगा 1 + x/3। ये हो जाएगा 1 + -x/3, क्योंकि मेरा फॉर्मूला 1 प्लस का है। किसका है? 1 प्लस का। After dividing, after making 1, I will apply limit to both numerator and denominator by giving the power also to both. तो मैं 1 by x पावर दोनों को देता हूं। Now see, let us look at the formula. ये जो x है exactly इसी का रेसिप्रोकल होना चाहिए। ये जो x यहाँ पर है exactly इसी का रेसिप्रोकल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो x/3 है, x/3 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा? 3/x। सो आई विल मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 3। ये होना चाहिए -3/x, तो -1/3। तो जो ब्लू कलर लिखा है वो मैंने मल्टीप्लाई किया है, बराबर। तो ये मेरा फॉर्मूला है ना, 1 + x raised to 1 by x। ये मेरा फॉर्मूला है, करेक्ट। सो फॉर्मूला क्या आता है? e, है ना। तो ऊपर आएगा e raised to 1 by 3, डिनोमिनेटर में आएगा e raised to -1/3। जो भी नंबर नहीं था मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, सो हो जाएगा e raised to 2/3। यू विल गेट द आंसर एज e raised to 2/3। आया समझ में? यस। let us take one more similar sum. Limit x tends to 0, 5x + 3, 3 minus 2x, 2/x। अगेन पावर 1/x है। सबसे पहला काम है मेरे को 1 चाहिए, बराबर। कांस्टेंट वाला टर्म 1 चाहिए, तो मैं हर एक्सप्रेशन हर टर्म को 3 से डिवाइड करूंगा। सो 1 + 5x/3, 1 minus 2x/3, या 1 प्लस माइनस कर देते हैं ना। अब 1 आ गया है तो आई विल गिव न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेपरेट लिमिट्स। सो 1 + 5x/3, 2/x, और डिनोमिनेटर हो जाएगा 1 + -2x/3, 2/x, बराबर। अब मैं x जो डिनोमिनेटर में उसी का रेसिप्रोकल बैलेंस करना है। ये 5x/3 है तो ये क्या होना चाहिए? 3/5x, है ना। 3/5,
तो 5/3 मैंने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया है, करेक्ट। डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, -2x/3 का रेसिप्रोकल क्या चाहिए, 3/2x, 3/-2x, इन शॉर्ट -2/3 मल्टीप्लाई किया है। ध्यान से देखोगे ये नंबर मैंने मल्टीप्लाई किया और इसी का उल्टा डिवाइड किया है, बराबर। ये नंबर मैंने मल्टीप्लाई किया है देखो, और इसी का उल्टा डिवाइड किया है। अब लेट अस मेक इट अ प्रॉपर फॉर्मूला। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 + 5x/3 को क्या लगेगा, 3/5x, वो 2 भी एक्स्ट्रा है मेरा, तो हो जाएगा 10/3। क्या हो जाएगा, 10/3। तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया। अगेन डिनोमिनेटर भी लेते हैं, 1 + -2x/3 क्या है गए, -3/2x, और एक्स्ट्रा टर्म क्या है, -4/3, बराबर। तो ये ब्रैकेट ई हो जाएगा, सो e⁻10/3, ये हो जाएगा डिवाइड बाई e⁻⁻4/3, दैट इज +4/3। सो इन शॉर्ट e⁻14/3 आंसर आएगा। क्या आएगा, e⁻14/3। ओके, इज इट क्लियर? Now we will move on to sums based on log. Log का भी फॉर्मूला पढ़ा है हमने। So limit x tends to 0, log 3 + x minus log 3 - x upon x. अगेन याद रखो log में भी कंपलसरी 1 जरूरी है ना। सबसे पहले log प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, तो log a minus log b क्या आएगा, log a/b, बराबर। कंपलसरी 1 बनाना है, तो 1 के लिए देयर इज ओनली वन ऑप्शन, डिवाइड। तो पूरे एक्सप्रेशन को मैं डिवाइड करता हूं, लाइक आई डिड फॉर द प्रीवियस सम, बराबर। डिवाइड करने के बाद फिर से आई विल अप्लाई लॉग प्रॉपर्टी, तो क्या आएगा, log 1 + x/3 माइनस log 1 + -x/3, ठीक है। अब x इसको भी देता हूं, x इसको भी देता हूं। अब log का फॉर्मूला क्या है, log 1 + x अपॉन x 1 होता है, बराबर। तो मैं लिमिट दोनों को दे देता हूं पहले, log 1 + x अपॉन x माइनस मुझे ये x और डिनोमिनेटर का x बैलेंस करना है, तो क्या है x का कोएफिशिएंट 1/3, 1/3। इधर क्या है, -1/3, सो -1/3, करेक्ट। इस ब्रैकेट का आंसर क्या है, 1, लॉग फॉर्मूला से, सो 1/3, ये हो जाएगा +1/3, दैट इज 2/3। क्या आंसर आएगा, 2/3। अंडरस्टूड? एनी डाउट्स? Okay, I'll take one sum now. Very, very important. Limit x tends to 2, log x minus log 2 upon x minus 2. ठीक है। अब यहां पर 1 लाना इम्पॉसिबल है, बराबर। 1 लाना इज वेरी वेरी इम्पॉसिबल। सो हम क्या करेंगे, आई विल से let x equal to 2 plus h, as x tends to 2 therefore h tends to 0। जब भी तुम्हें लिमिट में कुछ नहीं आ रहा है, थिंक ऑफ दिस मेथड, ठीक है। सो लिमिट h tends to 0, log x कितना है, 2 + h माइनस log 2, x - 2 कितना हो जाएगा, h, बराबर। अब फिर से पिछले सम की तरह लॉग प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो log 2 + h अपॉन 2 अपॉन h। अगेन 1 कंपलसरी चाहिए, तो ये 2 दोनों को देते हैं, सो log 1 + h/2 अपॉन h, सो बाई 2 इंटू 2 चाहिए, बराबर। तो ये तो तुम्हारा फॉर्मूला हो गया 1, तो आंसर आएगा हाफ। क्या आंसर आएगा आपका, हाफ। अंडरस्टूड? एनी डाउट्स? पक्का?
almost all sums I have covered. Still, if you have any doubt, you can ask me. Okay. Thank you.